میزبان حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین خلوص برا سلام قبول کریں۔ 3 مئی 2026 بمطابق 26 شوال مکرم 1445 ہجری بروز جمعہ۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ دن بھر کھلی دھوپ چھاؤں کے بیچ جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران خشک موسم کی پیشن گوئی۔ دن کے ساتھ ساتھ رات کے درجہ حرارت میں بھی نمایاں بہتری درج۔ 3 سے 6 مئی تک گرج چمک کے ساتھ بارش اور کچھ ایک مقامات پر ژالہ باری ہونے کا امکان۔ سری نگر میونسپل حدود کے تحت آنے والے سرکاری و پرائیویٹ اسکولوں کے اوقات کار تبدیل۔ 6 مئی سے صبح 8:30 سے دوپہر 2:30 تک درس و تدریس کا عمل رہے گا۔ حکام سیکٹر آف صفا قدر میں بدترین ٹریفک جام کے مناظر۔ مریض ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی گاڑی میں دم توڑ بیٹھا، لواحقین میں غم و غصہ۔ لوک سبھا انتخابات۔ عمر عبداللہ نے بارہمولہ پارلیمانی نشست سے کاغذاتی نامزدگی دائر کیے۔ ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں، کیونکہ ہماری لڑائی انصاف پر مبنی ہے۔ اگلے 5 سال میں عوام کے لیے محنت کروں گا، یہ میری گارنٹی، اور میری گارنٹی کوئی چینی گارنٹی نہیں بلکہ کشمیر کی گارنٹی ہے۔ 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کے ساتھ ہوا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، ہم اس کے خلاف لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اکیلے ہیں، اس لڑائی میں ہمارے اور بھی دوست ہیں۔ انشاءاللہ ان دوستوں کی تعداد جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی۔ 20 سال کے بعد میں نے لوک سبھا کے انتخابات کے لیے اپنا نامینیشن پیپر بھرا، یہاں تک کہ 10 سال کے عرصے کے بعد میں نے کسی طرح کا بھی نامینیشن پیپر بھرا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جموں کشمیر میں جمہوریت کا کیا حال ہے۔ اس سے پہلے اسمبلی الیکشن جو ہیں وہ 2014 میں ہوئے تھے۔ لگاتار 10 سال سے اب جو ہے جموں کشمیر میں اسمبلی الیکشن ہوئے نہیں ہیں، اور یہ جو آنے والا پارلیمانی الیکشن ہے اس کی اہمیت اس میں ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد یہ پہلا بڑا الیکشن ہے جموں کشمیر میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ نیشنل کانفرنس اور انڈیا گٹھ بندھن میں جو ہم مل کے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، امید کی جا رہی ہے کہ جموں کشمیر کی 5 سیٹیں اور لداخ کی سیٹ پہ ہم کامیابی حاصل کریں گے۔ ادھر اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری کے ہمراہ نائب صدر ظفر اقبال منہاس نے کل ضلع شوپیاں کی فروٹ منڈی میں اسمبلی انتخابات کی مہم چلاتے ہوئے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا۔ تم سن گری اس بت رنس اوسن لوگمت سہ نیون تھی رٹت کت کن لگ تس پی ایس اے پولیس ہمیں بتائے پی ایس اے کس طرح اس کے کک کو لگایا گیا، جبکہ جو اصلی ملزم ہے وہ کھلا ہے۔ وحید پارن مونیو یہ گرفتار کرنا، مگر وحید پر آس یل کت کن آس یل تم وازمانی کیا کور کیا ہے وازمانس آس اکی غلطی، وازمانس آس پتہ کس نش کوتا روٹو، یہ ما گھس لکن پتہ رٹن کرن بند۔ پولیس ملی ہوئی ہے، ابھی بھی اس وقت بھی ملی ہوئی تھی، آج بھی ملی ہوئی ہے۔ میں آج یہاں سے یہاں کی پولیس کو کہتا ہوں، آپ نارمل اور نیوٹرل رہو، ہم مدد نہیں چاہتے ہیں، لیکن ہمارے راستے میں روڑے مت اڑکاؤ۔ ہماری ریلی نکلی پرسوں یہاں بچی کانسٹیٹوئنسی سے، یہ کون سا لحاظ ان کو کہلواتا ہے کہ لوگوں کو آگے خطرہ ہے؟ کس چیز کا خطرہ ہے؟ اگر یہاں خطرہ کسی کو ہے پولیس سے ہے، اور جب ہمارے لوگ وہاں سے سیدھے نکلے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ کس کے احمد پہ یہ کر رہے ہیں؟ میں آج سوال کر رہا ہوں پولیس سے، ان کی کریڈیبلٹی پہ سوال ہے۔ پولیس راج نہیں چلنے دیا جائے گا، یہ پکڑ دکڑ نہیں چلنے دی جائے گی۔ ہمیں بتاؤ نا، وحید پارہ کا نوکر کیسے بند ہو سکتا ہے؟ گریجویٹ لڑکا ہے، اور وحید پارہ کھل کے الیکشن کے لیے ووٹ مانگے گا، اور آپ کہو گے ہمیں یہ انصاف ہے، اور پھر پی ایس اے لگاؤ گے۔
सांबा जिला में बैनुल अक़वामी सरहद पर दरअंदाजी की हलाकत के बाद BSF हाई अलर्ट पर। मारे गए दरअंदाज को मुमकिन तौर पर इलाके की जासूसी करने और फौजियों की चौकसी जांचने के लिए भेजा गया था। ऐसी हरकतें हमारी हौसला पस्त नहीं कर सकती। किसी भी कार्रवाई का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार IGBSF। छोटे बच्चों में खांसी, नाक बहना, बुखार जैसी बढ़ती बीमारियां, वालिदैन में तशवीश की लहर। रवा मौसम में इसी तरह की बीमारी मामूल की बात। घबराने की नहीं बल्कि एहतियात बरतने की ज़रूरत। हिफ्ज़ानी सेहत के तरीके और मास्क पहनना वायरल इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने की कलीद है। माहिर डॉक्टर। शहर श्रीनगर में जारी तमाम स्मार्ट प्रोजेक्टों को 45 दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल किया जाएगा। मुसाफिरों की राहत रसानी के लिए शहर के मुख्तलिफ रूटों पर 98 बसेज चल रही है। 2 को ज़रूरत के मुताबिक तैयार रखा गया है। मौसम की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर बेहतर होने के बाद चंद दिनों में सड़क को मैग्नेटाइज कर दिया जाएगा। SMC कमिश्नर डॉक्टर ओवैस अहमद। देखें, अभी यहाँ पे काम चल रहा है और हमारे काम चलने के लिए बैरियर्स लगे रहते हैं। उसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक जाम भी होता है। ये पब्लिक से भी हम कोऑपरेशन चाहते हैं और वो कर भी रहे हैं अभी तक। बट ये जो काम है हमारा, जो बेसिक हमें बाहर से उसका सर्कल पूरा करना है, जो हम बना रहे हैं जहांगीर चौक, ये अगले 3 दिन में मुझे हमारे चीफ इंजीनियर साहब बता रहे हैं कि वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम जो रोड सर्विस है उस पर काम करेंगे। फिर ये वाला काम हम बाद में करेंगे, यानी कि बाद के 1-1.5 महीने में हम अंदर वाले काम को कंप्लीट करेंगे। और जो रोड का काम है वो हम उससे पहले ही कंप्लीट करके 4-5 दिन में उसको मैग्नेटाइजेशन शुरू कर देंगे। ये रोटरी है हमारा, जहांगीर चौक का रोटरी है और उसी पे काम कर रहे हैं। और जो रोटरी का एक फंक्शन रहता है कि ट्रैफिक जो है वो सर्कुलर चलता रहे, हमें डाइवर्जन ना लेना पड़े, जैसे कि अभी हमें लेना भी पड़ता है। तो हमारी कोशिश यही है कि ये जो ट्रैफिक की डिमांड को देखते हुए आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये फोकल एरिया है, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, उसको देखते हुए एक रोटरी पूरी सीमलेसली बनाई जा रही है, जिसमें हमारे लगभग यहाँ पे 10 जो रोड्स हैं वो यहाँ पे आके जुड़ती हैं। तो उनसे जो ट्रैफिक आए वो सीमलेसली यहाँ पे रोटेट होके अपने अपने अलग अलग डायरेक्शन में जा सके। इसमें जो फ्लाईओवर से इंग्रेस है, जो हमारा फ्लाईओवर पर चढ़ने वाला रास्ता है, उसको भी थोड़ा सा हम जो मौजूदा रास्ता है उसको हल्का सा और वाइडन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो गाड़ियां हैं वो इजीली ऊपर जो फ्लाईओवर उस पर चढ़ सके, वहां से उतर सके, और उसके बाद अपना जो वे है अगर उनको लेफ्ट साइड जाना है लेफ्ट साइड जा सके, और अगर सर्कल के थ्रू घूम के आने आ सके। अभी तक क्या था, वो डायरेक्टली आते थे और 90 डिग्रीज पे कन्वर्जन हो जाता था फ्लाईओवर वाले ट्रैफिक का और एक साइड वाले ट्रैफिक का। अब वो 90 डिग्री कन्वर्जन ना हो, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम ना लगे, सर्कुलर वो चले, वो इसके पीछे बहुत है। मशरकी लद्दाख में भारत और चीन के दरमियान जारी कशीदगी के बीच चीन ने दराओगल के जरिए और ज़ेरी शक्सगाम वादी तक सड़क तामीर की। सैटेलाइट की नई तस्वीर जारी। अरब अमारात में मूसलाधार बारिशें। दुबई एयरपोर्ट पर 13 प्रवासी मनसूख। सऊदी अरब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशें। सहराई रेगिस्तान भी पानी से भर गए। हिंदू पाक बैनुल अक़वामी सरहद पर पाकिस्तानी ड्रोन की बढ़ती नकल हरकत। पंजाब सेक्टर में चीनी साख्त का ड्रोन खराब हालत में बरामद। बारामूला में बदनामी जमा मुनशियात फरोश की 50 लाख रुपए की गैर कानूनी जायदाद जब्त। कुलगाम में मुनशियात फरोश गिरफ्तार। ममनुआ मादा बरामद, केस दर्ज। कांग्रेस मर रही है और पाकिस्तान रो रहा है। पड़ोसी मुल्क शहजादा को वजीर आज़म बनाने के लिए बेचैन, खुसूसी दुआएं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अमन और तरक्की के दुश्मन। गुज़श्ता 10 सालों में हमने अमन भी कायम किया और मुल्क की तरक्की भी हुई। बीजेपी ने ओहदा संभालते ही सब कुछ ठीक कर दिया। मुलविसीन के खिलाफ कार्रवाई शुरू करके उनकी नींद हराम हो गई। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। माह जून में इंतखाबी नताइज आने के बाद राहुल गांधी को कांग्रेस ढूंढो यात्रा शुरू करनी होगी। ये हमारी गारंटी है। कश्मीर के लिए मुल्क का हर बच्चा अपनी जान कुर्बान कर सकता है। वहाँ तिरंगा फख्र से लहरा रहा है। हर घर में मोदी मोदी हो रही है।
हमने दहशत गर्दी से नजात के लिए पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की। जम्मू कश्मीर जल्द मुकम्मल अमन और हर तरह का तशद्दुद खत्म होगा। अमित शाह। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद से ही हादसात पर काबू पाया जा सकता है और इंसानी जानों को बचाया जा सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रोड सेफ्टी बेदारी टूर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इंसानी जानों को बचाने के लिए हर शहरी को सड़कों पर चलकर अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। मनोज सिन्हा। मकामी सियासी जमातों ने कई दहाइयों से जम्मू कश्मीर में हुकूमत की और कश्मीर को आग लगा दी। गुज़श्ता 10 सालों में मुल्क के गरीब आवाम की भलाई और बेहतरी के लिए बहुत से आउट ऑफ बॉक्स फैसले लिए गए। मोदी हुकूमत अगले 5 सालों में मुल्क भर के लोगों के लिए मज़ीद 3 करोड़ मकानात तामीर करेगी। तरुण चुग। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।